ہمارے اسلامی یوٹیوب چینل میان جی اسٹوڈیو کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اسلامی ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ شاید وہ گزشتہ آسمانی کتاب کا کوئی عالم تھا اور اس نے آپ کو پہچان لیا تھا، چنانچہ بولا، آپ ٹھیک کہتے ہیں۔ اس کے بعد اس نے میسرہ سے علیحدگی میں ملاقات کی، کہنے لگا، میسرہ، یہ نبی ہیں، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہ وہی ہے جن کا ذکر ہمارے راہب اپنی کتابوں میں پاتے ہیں۔ میسرہ نے اس کی اس بات کو ذہن نشین کر لیا۔ راستے میں ایک اور واقعہ پیش آیا۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے دو اونٹ بہت زیادہ تھک گئے تھے اور چلنے کے قابل نہ رہے، ان کی وجہ سے میسرہ قافلے کے پیچھے رہ گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قافلے کے اگلے حصے میں تھے۔ میسرہ ان اونٹوں کی وجہ سے پریشان ہوا تو دوڑتا ہوا اگلے حصے کی طرف آیا اور اپنی پریشانی کے بارے میں آپ کو بتایا۔ آپ اس کے ساتھ ان دونوں اونٹوں کے پاس تشریف لائے، ان کی کمر اور پچھلے حصے پر ہاتھ پھیرا، کچھ پڑھ کر دم کیا۔ آپ کا ایسا کرنا تھا کہ اونٹ اسی وقت ٹھیک ہو گئے اور اس قدر تیز چلے کہ قافلے کے اگلے حصے میں پہنچ گئے۔ اب وہ منہ سے آوازیں نکال رہے تھے اور چلنے میں جوش و خروش کا اظہار کر رہے تھے۔ پھر قافلے والوں نے اپنا سامان فروخت کیا۔ اس بار انہیں اتنا نفع ہوا کہ پہلے کبھی نہیں ہوا تھا، چنانچہ میسرہ نے اب سے کہا، اے محمد، ہم سالہ سال سے سیدہ خدیجہ کے لیے تجارت کر رہے ہیں، مگر اتنا زبردست نفع ہمیں کبھی نہیں ہوا جتنا اس بار ہوا ہے۔ آخر قافلہ واپس مکہ کی طرف روانہ ہوا۔ میسرہ نے اس دوران صاف طور پر یہ بات دیکھی کہ جب گرمی کا وقت ہوتا تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اونٹ پر ہوتے تھے تو دو فرشتے دھوپ سے بچانے کے لیے آپ پر سایہ کیے رہتے تھے۔ ان تمام باتوں کی وجہ سے میسرہ کے دل میں آپ کی محبت گھر کر گئی اور یوں لگنے لگا جیسے وہ آپ کا غلام ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کے وقت مکہ میں داخل ہوئے۔ آپ باقی قافلے سے پہلے پہنچ گئے تھے۔ آپ سیدھے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے گھر پہنچے۔ وہ اس وقت چند عورتوں کے ساتھ بیٹھی تھیں۔ انہوں نے دور سے آپ کو دیکھ لیا۔ آپ ان پر سوار تھے اور دو فرشتے آپ پر سایہ کیے ہوئے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے یہ منظر دوسری عورتوں کو بھی دکھایا۔ وہ سب بہت حیران ہوئیں۔ اب ابن حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو تجارت کے حالات سنائے، منافع کے بارے میں بتایا۔ اس مرتبہ پہلے کی نسبت 2 گنا منافع ہوا تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا بہت خوش ہوئیں۔ انہوں نے پوچھا، میسرہ کہاں ہے؟ آپ نے بتایا، وہ ابھی پیچھے ہے۔ یہ سن کر سیدہ نے کہا، آپ فوراً اس کے پاس جائیے اور اسے جلد از جلد میرے پاس لائیے۔ آپ واپس روانہ ہوئے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے دراصل آپ کو اس لیے بھیجا تھا کہ وہ پھر سے وہی منظر دیکھنا چاہتی تھیں، جاننا چاہتی تھیں کیا اب بھی فرشتے ان پر سایہ کرتے ہیں یا نہیں۔ جو ہی آپ روانہ ہوئے یہ اپنے مکان کے اوپر چڑھ گئیں اور وہاں آپ کو دیکھنے لگیں۔ آپ کی شان اب بھی وہی نظر آئی۔ اب انہیں یقین ہو گیا کہ ان کی آنکھوں نے دھوکہ نہیں کھایا تھا۔ کچھ دیر بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم میسرہ کے ساتھ ان کے پاس پہنچ گئے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے میسرہ سے کہا، میں نے ان پر 2 فرشتوں کو سایہ کرتے ہوئے دیکھا ہے، کیا تم نے بھی کوئی ایسا منظر دیکھا ہے؟ جواب میں میسرہ نے کہا، میں تو یہ منظر اس وقت سے دیکھ رہا ہوں جب قافلہ یہاں سے شام جانے کے لیے روانہ ہوا تھا۔ اس کے بعد میسرہ نے انستورا سے ملاقات کا حال سنایا۔ دوسرے آدمی نے جو کہا تھا وہ بھی بتایا، جس نے لات اور اس کی قسم کھانے کے لیے کہا تھا، پھر اونٹوں والا واقعہ بتایا۔ یہ تمام باتیں سننے کے بعد سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے آپ کو طے شدہ اجرت سے دگنا دی، جبکہ طے شدہ اجرت پہلے ہی دوسرے لوگوں کی نسبت دگنا تھی۔ ان تمام باتوں سے سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا بہت حیران ہوئیں۔ اب وہ اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل سے ملے، یہ پچھلی کتابوں کے عالم تھے۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے انہیں جو کچھ خود دیکھا اور میسرہ کی زبانی سنا تھا وہ سب کہہ آیا۔ ورقہ بن نوفل اس وقت عیسائی مذہب سے تعلق رکھتے تھے، اس سے پہلے وہ یہودی تھے۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کی تمام باتیں سن کر ورقہ بن نوفل نے کہا، خدیجہ، اگر یہ باتیں سچ ہیں تو سمجھ لو محمد اس امت کے نبی ہیں۔ میں یہ بات جان چکا ہوں کہ وہ اس امت کے ہونے والے نبی ہیں، دنیا کو انہی کا انتظار تھا، یہی ان کا زمانہ ہے۔
यहाँ ये बात भी वाज़ेह हो जाए कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदा खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा के लिए तिजारती सफ़र सिर्फ एक बार ही नहीं किया, चंद सफ़र और भी किए। सैयदा खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा एक शरीफ और पाक-बाज़ खातून थीं। नसब के एतबार से भी कुरैश में सबसे आला थीं। उन्हें कुरैश की सैयदा कहा जाता था। कौम के बहुत से लोग उनसे निकाह ख्वाहिशमंद थे, कई नौजवानों के पैगाम उन तक पहुंच चुके थे, लेकिन उन्होंने किसी के पैगाम को कबूल नहीं किया था। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तिजारत के सफ़र से वापस आए तो आपकी खुसूसियात देखकर और आपकी बातें सुनकर वो अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत ज़्यादा मुतासिर हो चुकी थीं। लिहाजा उन्होंने एक खातून नफीसा बिन्त मने को आपकी खिदमत में भेजा। इन्होंने आकर आपसे कहा कि अगर कोई दौलतमंद और पाकबाज खातून खुद आपको निकाह की पेशकश करे तो क्या आप मान लेंगे? उनकी बात सुनकर आपने फरमाया, वो कौन है? नफीसा ने फौरन कहा, खदीजा बिन्त खुयल्द। आपने उन्हें इजाजत दे दी। नफीसा बिन्त मनिये सैयदा खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा के पास आए, उन्हें सारी बात बताई। सैयदा खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा ने अपने चचा उमरो बिन असद को इत्तिला कराई ताकि वो आकर निकाह कर दें। सैयदा खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा की इससे पहले 2 मर्तबा शादी हो चुकी थी। उनका पहला निकाह अतीक इब्न माद से हुआ था। इससे बेटी हिंदा पैदा हुई थी। अतीक के फौत हो जाने के बाद सैयदा का दूसरा निकाह अबू हाला नामी शख्स से हुआ। अबू हाला की वफात के बाद सैयदा खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा बेवगी की जिंदगी गुजार रही थी कि उन्होंने अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निकाह का इरादा कर लिया। इस वक्त सैयदा की उम्र 40 साल के लगभग थी। सैयदा खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा के चचा उमरो बिन असद वहां पहुंच गए। उधर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपने चचाओं को लेकर पहुंच गए। निकाह किसने पढ़ाया, इस बारे रवायत मुख्तलिफ हैं। एक रवायत यह है कि यह निकाह चचा अबू तालिब ने पढ़ाया था। महर की रकम के बारे में भी रवायत मुख्तलिफ हैं। एक रवायत यह है कि महर की रकम 12 ओक़ये के करीब थी। दूसरी रवायत यह है कि अपने महर में 20 जवान ऊँटनियाँ दीं। निकाह के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वलीमे की दावत खिलाई और इस दावत में अपने 1 या 2 ऊँट ज़बह किए। सैयदा खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा से निकाह। शायद वो गुज़िश्ता आसमानी किताब का कोई आलम था और उसने आपको पहचान लिया था, चनाचा बोला। आप ठीक कहते हैं। इसके बाद इसने मैसरा से अलहदगी में मुलाकात की, कहने लगा, मैसरा, ये नबी हैं, किस्म है इस ज़ात की जिसके हाथ में मेरी जान है, ये वही है जिनका जिक्र हमारे राहिब अपनी किताबों में पाते हैं। मैसरा ने इसकी इस बात को ज़हन नशीन कर लिया। रास्ते में एक और वाक़या पेश आया। सैयदा खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा के 2 ऊँट बहुत ज़्यादा थक गए थे और चलने के काबिल ना रहे। उनकी वजह से मैसरा काफ़िले के पीछे रह गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काफ़िले के अगले हिस्से में थे। मैसरा उन ऊँटों की वजह से परेशान हुआ तो दौड़ता हुआ अगले हिस्से की तरफ आया और अपनी परेशानी के बारे में आपको बताया। आप उसके साथ उन दोनों ऊँटों के पास तशरीफ लाए, उनकी कमर और पिछले हिस्से पर हाथ फेरा, कुछ पढ़कर दम किया। आपका ऐसा करना था कि ऊँट इसी वक्त ठीक हो गए और इस कदर तेज चले के काफिले के अगले हिस्से में पहुंच गए। अब वो मुंह से आवाजें निकाल रहे थे और चलने में जोश और खरूश का इजहार कर रहे थे। फिर काफिले वालों ने अपना सामान फरोख्त किया। इस बार उन्हें इतना नफा हुआ कि पहले कभी नहीं हुआ था। चुनांचे मैसरा ने आपसे कहा, ए मोहम्मद, हम साल से सैयदा खदीजा के लिए तिजारत कर रहे हैं, मगर इतना जबरदस्त नफा हमें कभी नहीं हुआ जितना इस बार हुआ है। आखिर काफिला वापस मक्का की तरफ रवाना हुआ। मैसरा ने इस दौरान साफ तौर पर यह बात देखी कि जब गर्मी का वक्त होता था और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने ऊँट पर होते थे तो 2 फरिश्ते धूप से बचाने के लिए आप पर साया किए रहते थे। इन तमाम बातों की वजह से मैसरा के दिल में आपकी मोहब्बत घर कर गई और यूं लगने लगा जैसे वो आपका गुलाम हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोपहर के वक्त मक्का में दाखिल हुए। आप बाकी काफिले से पहले पहुंच गए थे। आप सीधे हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा के घर पहुंचे। वो इस वक्त चंद औरतों के साथ बैठी थीं। उन्होंने दूर से आपको देख लिया। आप ऊँट पर सवार थे और 2 फरिश्ते आप पर साया किए हुए थे। हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा ने यह मंजर दूसरी औरतों को भी दिखाया। वो सब बहुत हैरान हुईं। अब इब्ने हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा को तिजारत के हालात सुनाए, मुनाफा के बारे में बताया।
इस मर्तबा पहले की निस्बत 2 गना मुनाफा हुआ था। हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा बहुत खुश हुई। उन्होंने पूछा, मैसरा कहाँ है? आपने बताया, वो अभी पीछे है। ये सुनकर सैयदा ने कहा, आप फौरन इसके पास जाइए और इसे जल्द अज जल्द मेरे पास लाइए। आप वापस रवाना हुए। हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा ने दरअसल आपको इसलिए भेजा था कि वो फिर से वही मंजर देखना चाहती थी, जानना चाहती थी क्या अब भी फरिश्ते इन पर साया करते हैं या नहीं। जो ही आप रवाना हुए ये अपने मकान के ऊपर चढ़ गईं और वहां आपको देखने लगे। आपकी शान अब भी वही नजर आई। अब उन्हें यकीन हो गया कि उनकी आंखों ने धोखा नहीं खाया था। कुछ देर बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैसरा के साथ उनके पास पहुंच गए। हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा ने मैसरा से कहा, मैंने उन पर 2 फरिश्तों को साया करते हुए देखा है, क्या तुमने भी कोई ऐसा मंजर देखा है? जवाब में मैसरा ने कहा, मैं तो ये मंजर इस वक्त से देख रहा हूं जब काफिला यहां से शाम जाने के लिए रवाना हुआ था। इसके बाद मैसरा ने इंस्तुरा से मुलाकात का हाल सुनाया। दूसरे आदमी ने जो कहा था वो भी बताया, जिसने लात और इसकी किस्म खाने के लिए कहा था, फिर ऊंटों वाला वाकया बताया। ये तमाम बातें सुनने के बाद सैयदा खदीजा रजी अल्लाह अन्हा ने आपको तयशदा उजरत से दुगना दी, जबकि तयशदा उजरत पहले ही दूसरे लोगों की निस्बत दुगना थी। इन तमाम बातों से सैयदा खदीजा रजी अल्लाह अन्हा बहुत हैरान हुई। अब वो अपने चचाजाद भाई वर्का बन नौफल से मिले। ये पिछली किताबों के आलम थे। सैयदा खदीजा रजी अल्लाह अन्हा ने उन्हें जो कुछ खुद देखा और मैसरा की ज़बानी सुना था वो सब कहसा आया। वर्का बिन नौफल इस वक्त ईसाई मजहब से ताल्लुक रखते थे, इससे पहले वो यहूदी थे। सैयदा खदीजा रजी अल्लाह अन्हा की तमाम बातें सुनकर वर्का बिन नौफल ने कहा, खदीजा, अगर ये बातें सच हैं तो समझ लो मोहम्मद इस उम्मत के नबी हैं। मैं ये बात जान चुका हूं कि वो इस उम्मत के होने वाले नबी हैं। दुनिया को उन्हीं का इंतजार था, यही उनका जमाना है। यहां ये बात भी वाज़ेह हो जाए कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदा खदीजा रजी अल्लाह अन्हा के लिए तिजारती सफ़र सिर्फ एक बार ही नहीं किया, चंद सफ़र और भी किए। सैयदा खदीजा रजी अल्लाह अन्हा एक शरीफ और पाकबाज खातून थीं। नसब के एतबार से भी कुरैश में सबसे आला थीं। उन्हें कुरैश की सैयदा कहा जाता था। कौम के बहुत से लोग उनसे निकाह ख्वाहिशमंद थे। कई नौजवानों के पैगाम उन तक पहुंच चुके थे, लेकिन उन्होंने किसी के पैगाम को कबूल नहीं किया था। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तिजारत के सफ़र से वापस आए तो आपकी खुसूसियात देखकर और आपकी बातें सुनकर वो अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत ज़्यादा मुतासिर हो चुकी थीं। लिहाजा उन्होंने एक खातून नफीसा बिन्त मने को आपकी खिदमत में भेजा। इन्होंने आकर आपसे कहा कि अगर कोई दौलतमंद और पाकबाज खातून खुद आपको निकाह की पेशकश करे तो क्या आप मान लेंगे? उनकी बात सुनकर आपने फरमाया, वो कौन है? नफीसा ने फौरन कहा, खदीजा बिन्त खुयल्द। आपने उन्हें इजाजत दे दी। नफीसा बिन्त मनिये सैयदा खदीजा रजी अल्लाह अन्हा के पास आए, उन्हें सारी बात बताई। सैयदा खदीजा रजी अल्लाह अन्हा ने अपने चचा उमरो बिन असद को इत्तिला कराई ताकि वो आकर निकाह कर दें। सैयदा खदीजा रजी अल्लाह अन्हा की इससे पहले 2 मर्तबा शादी हो चुकी थी। उनका पहला निकाह अतीक इब्न माद से हुआ था। इससे बेटी हिंदा पैदा हुई थी। अतीक के फौत हो जाने के बाद सैयदा का दूसरा निकाह अबू हाला नामी शख्स से हुआ। अबू हाला की वफात के बाद सैयदा खदीजा रजी अल्लाह अन्हा बेवगी की जिंदगी गुजार रही थी कि उन्होंने अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निकाह का इरादा कर लिया। इस वक्त सैयदा की उम्र 40 साल के लगभग थी। सैयदा खदीजा रजी अल्लाह अन्हा के चचा उमरो बिन असद वहां पहुंच गए। उधर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपने चचाओं को लेकर पहुंच गए। निकाह किसने पढ़ाया, इस बारे रवायात मुख्तलिफ हैं। एक रवायत यह है कि यह निकाह चचा अबू तालिब ने पढ़ाया था। महर की रकम के बारे में भी रवायात मुख्तलिफ हैं। एक रवायत यह है कि महर की रकम 12 ओक़ये के करीब थी। दूसरी रवायत यह है कि अपने महर में 20 जवान ऊँटनियाँ दीं। निकाह के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वलीमे की दावत खिलाई और इस दावत में अपने 1 या 2 ऊँट ज़बह किए।